تو اشرف میں آپ کو اس اینگل سے معلوم کرنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر صاحبہ سے میں پوچھ رہا چاہ رہا تھا، فرحان صاحبہ سے، یہ بھی آسٹریلیا میں ہوتی ہیں کہ روٹ کاز کے، لیکن ایز اے جرنلسٹک ویو سے اگر آپ دیکھیں، کہتے ہیں باپ بیٹے تھے، امریکن کہتے ہیں کہ یہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا، اور اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے تھے، پیدا یہاں ہوئے، یعنی وہ جو ایک کی پرورش تو پوری آسٹریلیا کے ماحول میں ہوئی، لیکن جو دولت اسلامیہ یا داعش یا وہ جو گروپ تھے بظاہر اسلام اللہ ختم کہتے ہیں ختم ہو گئے، لیکن یہ بکھر گئے ہیں کسی نہ کسی چیز میں، یہ مائنڈس جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک سوچ موجود ہے اشرف شاہ، جس کا اظہار اس طرح ہوا جو آپ نے کل دیکھا ہوگا۔ جی بجائے صاحب بہت شکریہ۔ وہ ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے جو فرمایا میں وہ سن نہیں سکا ہوں، بہرحال میں جو سمجھ سکتا ہوں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اصل میں یہ سڈنی میں اس طرح کے واقعات ہوتے نہیں ہیں، مطلب پورے آسٹریلیا میں ہی، بلکہ میں کوئی 40 سال سے یہاں ہوں، اور میرا خیال ہے ایسے میرے خیال 2-4 واقعات ہوئے ہوں گے، وہ بھی زیادہ تر انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہیں اسی بوڈائی کے علاقے میں، بوڈائی جنکشن ایک بڑا شاپنگ مال ہے، وہاں 1-2 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک شخص نے وہ چھرے لے کر 5-6 لوگ مار دیے تھے۔ تو وہ ایک بڑے کچھ اس طرح کے کچھ ڈی رینج لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو 2 کمیونٹیز کے درمیان ایک جو ٹینشن ہے، اور وہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی یہ ٹینشن جو ہے وہ جب سے فلسطین میں غزہ میں جب یہ حملے شروع ہوئے ہیں واقعات، تو اس کے بعد سے جو یہاں کی بہت ہی اسٹرانگ کمیونٹی ہے یہاں پر، جو اس کی پرو پیلسٹینین اور جو اسلامک کمیونٹی ہے، لیبنیز ہے، پاکستانی، بہت سارے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ خود اپنے آسٹریلین جو نارمل آسٹریلینز ہیں، وہ سب انہوں نے اس کے خلاف کوئی تقریباً 1 سال سے زیادہ ہوا وہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، جبکہ ہر اتوار کو وہاں کم از کم کئی ہزار لوگ ہوتے ہیں، پورے شہر میں مارچ ہوتا ہے۔ پل پر آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، پل کے اوپر مارچ کیا تھا پورا کوئی 1-2 لاکھ لوگوں نے۔ کبھی بھی لیکن کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا جس میں کہ دونوں کمیونٹیز کے درمیان جو ہے ٹینشن ضرور تھے، لیکن کبھی کوئی ایسا تشدد کا واقعہ کوئی انڈیویجول بھی نہیں ہوا اور کسی اور سطح پر بھی نہیں ہوا۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی ایک اتفاقی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اور بہرحال وہی ایک 2 لوگ تھے جن کا اپنا ذہنی ہوا، یہ کہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جب یہ اچانک ہوا نا تو بہت ہی کنفیوژن تھا، بہت سی صحیح انفارمیشن آ نہیں رہی تھی۔ مثلاً یہ جس شخص کا یہ جو نوید اکرم جو ہے، جو لڑکا، وہ تو خیر ابھی زندہ ہے، زخمی ہے، لیکن اس کا جو باپ تھا ساجد، وہ تو نہیں رہا، وہ تو مر گیا، اس کو تو مار دیا گیا ہے۔ تو وہ ان کے بارے میں مختلف، مثلاً ایک نوید اکرم ایک پاکستانی لڑکا ہے، وہ اس کا نام بھی نوید اکرم ہے، لیکن اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہاں پر ہمارے کونسل جنرل نے سڈنی میں، پاکستان کے کونسل جنرل نے باقاعدہ اس کی وضاحت بھی جاری کی اور بتایا کہ بھئی یہ اس کی تصویر بھی لڑکے کی، وہ جو لڑکا تھا نوید اکرم ایک، اس نے خود اپنی باقاعدہ ایک آن لائن اس نے بتایا کہ بھئی یہ میں نہیں ہوں، اور وہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک مختلف لڑکا تھا جس کے بارے میں کہا یہ گیا ہے، یہ پیدائش تو اس کی یہیں کی تھی، یہیں پیدا ہوا وہ، میرا خیال ہے کہ 99 میں یا 2000 میں کچھ اس کے اراؤنڈ۔ تو وہ جو ہے اس کے بارے میں باتیں بہت زیادہ کلیئر نہیں ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاسپورٹ اس کا جو ہے وہ پاکستانی تھا، لیکن اوریجنلی وہ افغانستان سے آیا تھا۔ تو وہ یہ باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا جو شخص جو ہیرو اس وقت ہمارا، جس نے کہ ایک بڑا کام کیا، اس نے بہت سی جانیں بچائیں، اور جانیں بچانے کے علاوہ جو یہ احمد نامی شخص نے جو شام سے تعلق ہے جس کا، اس نے جا کر یعنی ایک بہت ہی ایک انتہائی بہادری کا اشرف، یہ تو سب چیزیں ہمارے یہاں اشرف ہمارے یہاں رپورٹنگ ہو رہی ہے کوئی 24 گھنٹے سے، اور ہم یہ سن بھی نہیں رہے ہیں۔ جو آپ نے ایک تو بنیادی بات بتائی، جس کی جو ایک غزہ اور فلسطین میں جو مسیکر ہو رہا ہے اس سے ساری دنیا متاثر ہوئی ہے، مسلمان ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اشرف صاحب، یہ جو ابھی لکھا ہوا لفظ، یعنی پاکستان کا جو سب سے پرانا قدیم اخبار شہ سرخی سے یہ خبر لگائے گا، چلیں ہم اور آپ تو پھر بھی پروفیشنل ہیں، اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس نے یہ
पब्लिश किया अमेरिका के हवाले से, और हमने एक और एतबार हो गया, अब तरदीद हो सकता है 24 घंटे बाद आए। गुफ्तगू तो महवर में यही है रहेगी कि दोनों बाप बेटों का ताल्लुक पाकिस्तान से था, यहाँ से वो वीज़े पे आया स्टूडेंट्स के। खैर वो कहीं का भी हो सकता है और कहीं कोई भी आदमी कर सकता है। वो जो आपने पस मंज़र बताया वो भी एक रीज़न है कि जिसमें जो कुछ गज़ा में हुआ है और हो रहा है उसने सारी दुनिया को, बल्कि हमारे यहाँ वो सब कॉन्टिनेंट ईस्ट में वो रद्दमल नहीं है जो वेस्ट में है और आपके ऑस्ट्रेलिया में है। जी इरशाद। जी, तो क्या देखिए आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान में जो खबर चल रही है कि ये पाकिस्तानी थे और ये जंग में हेडलाइन लगाई है। देखिए, ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त है, और जंग तो मैं जंग को तो खैर कभी भी, मैं ख़ास तौर पे आजकल के हालात में उसको बिल्कुल एक मोतबर अख़बार नहीं समझता। लेकिन जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने जो बताया ना, वो बिल्कुल वाक़या सही यही है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहीं भी, देखिए वाक़या ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, उसको हैंडल ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट कर रही है, ऑस्ट्रेलिया के इदारे कर रहे हैं 24 घंटे टेलीविज़न के ऊपर। एक कहीं भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि ये इनका ताल्लुक जो है कहाँ से था। बिल्कुल नहीं। एक गलतफहमी हुई थी एक लड़के के बारे में जिसका के नाम था और वो नहीं था इसमें मुलव्विस। तो मैंने जैसे बताया कि हमारे पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने क़मर ज़मान ने इसका पूरा एक वज़ाहत जारी की और उस लड़के ने भी जारी की। तो ये जो एक है ना, अमेरिका ने देखिए, अमेरिका ने, मैं भी देख रहा हूँ, अमेरिका ने कहीं कुछ नहीं कहा। किसी भी, अगर किसी ऑनलाइन कहीं किसी ने कुछ लिख दिया हो, कह दिया हो, किसी अमेरिका के अखबार में भी आप नहीं दिखा सकते कि उन्होंने कहा हो कि ये पाकिस्तान, कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। ऐसा भी, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है, और जो भी ये सारे हमारे महज़ब मुल्क हैं, ये कभी भी ऐसी कोई गैर ज़िम्मेदाराना बात इतनी हसास नौइयत की इसलिए नहीं करते कि उसके फिर रिपरकशन बहुत ख़राब होते हैं। आप ये कहें कि अच्छा ये अच्छा अच्छा, मैं पाकिस्तानी अगर थे तो इससे कल चले, ये मैंने मान पाकिस्तानियों के लिया, खिलाफ यहाँ आपके ख्याल में क्या शुरू हो जाए इतने यहाँ पर सिक्योरिटी के किसी सिलसिले तरह का, में ऐसा ओवर बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस का शिकार हैं? वो जब तक सॉरी पूरी अशब, तरह उसकी अच्छा अच्छा उनको, अच्छा, सॉरी अशब, क्या ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट और ये वेस्ट की गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी के हवाले से इतने ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, या इतना वो समझते हैं कि ये वो हो ही नहीं सकता ऐसा कोई, जबकि ये भी पढ़ा गया कि 10 साल पहले इस लड़के पर नज़र थी कुछ मशकूक सरगर्मियाँ, फिर इनको लीगल असला दिया गया था जो गालिबन अब दिया जाता है। तो कुछ वो नहीं ये तो नहीं अब हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं, ये मैं आपको उनके रडार पे तो नहीं, था। जी असलहा कोई लीगल दिया नहीं गया था। ऑस्ट्रेलिया में आप शिकार करने के लिए या किसी और वजह से लाइसेंस ले सकते हैं। तो इसके पास ये जो आदमी था साजिद, जो गबाब था, उसके पास 6 मुख्तलिफ जो हथियार थे उनके लाइसेंस थे उसके पास। तो उसने कोई यानी गैर कानूनी कोई उसके पास वो असला नहीं था। वो उसके पास 6 मुख्तलिफ उनके वो थे। तो वो एक, और जहाँ तक लड़के का ताल्लुक है, लड़के की 6 साल पहले लड़का जो है वो आईसिस के, दाइश के जो लोग हैं उनसे, जो कुछ मौलवी यहाँ पर थे, उनको सजाएं हो चुकी हैं, वो जेल के अंदर हैं, वो उनसे उसका ताल्लुक हुआ था। तो ये यहाँ बल्कि वो थोड़े से डिफेंसिव पर भी है यहाँ की एजेंसी, कि उनको जब इसका ताल्लुक मालूम हुआ था तो उन्होंने उस पर वॉच क्यों ख़त्म कर दी। उस वक्त उन्होंने उसको वो अंडर वॉच नहीं रखा था उसको। आप कहते हैं ना असला होता है शिकार के लिए होता है, लेकिन जब इसका राब्ता भी पता चला और वो लड़के जेल में भी थे आपके कहने के मुताबिक और ये भी कर रहे थे, तो इसके मायने असला या उसकी जो और आपके यहाँ तो बड़े कैमरे, हमारे यहाँ तो अभी कैमरे लगे हैं, और कैमरे भी क्या, वो गाड़ी में अगर हमने बेल्ट नहीं लगाई तो चालान हो जाता है, हालांकि उसमें मैं अगर बंदूक लेके चलाऊँ तो कुछ नहीं होगा। तो आपके जैसे आप जैसे जो मैं तो सो कॉल करूँगा कि इतना ज़्यादा पुरएतमाद होना कि जी हमारे यहाँ तो हो ही नहीं सकता, हम महफूज तरीन लोग हैं, अब तो महफूज तरीन मुल्कों में होने लगा है ना, जैसा कि ये हुआ। इसके मायने यहाँ सिक्योरिटी लैब्स है जो हम कहते हैं, जहाँ पाकिस्तान में इस तरह तो आम होता था, यहाँ भी वहाँ की जो पर्टिकुलर जो नज़र रखने वाले इदारे थे जो इस लड़के पर या इसके फैमिली पर या इसके एक्टिविटीज़ पर या रिलेट पर, उन्होंने इसको ज़रा लाइटली लिया, उन्होंने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। शशाद नहीं, मुजाहिद ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ इस तरह के वाक़यात जैसा आपने कहा हो जाते हैं, जब होते हैं इंडिविजुअली कहीं भी हो सकते हैं, और कितना भी सेफ मुल्क हो, और यकीनन बहुत सेफ मुल्क है, लेकिन फौरी तौर पर उसका मदावा किया जाता है। अब आप जो बात कर रहे हैं ना इसकी असलहे की, ये सबसे पहले जब एक वाक़या हुआ था उस वक़्त जॉन हॉवर्ड वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने असलहे पे बहुत पाबंदियाँ लगाई थी। उसके बावजूद अभी तक, अब
अभी आज ही कैबिनेट का इजलास हुआ है ऑस्ट्रेलिया की, और सबसे पहला सवाल यही आया है कि असलहे के बारे में जो कवानीन है उनको दोबारा सख्त किया जाए और उनमें तब्दीली की जाए, और वो मेरा ख्याल है एक चंद रोज के अंदर ही ये नई लेजिस्लेशन हो जाएगी इसकी। तो वो जहाँ तक आपकी बात की भी ऑस्ट्रेलिया ऐसा सेफ मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसे ही वाकयात तो होंगे ना, चोरी भी होती है, डाका भी होता है, कत्ल भी होते हैं, इस तरह के भी वाकयात होते हैं। लेकिन आप इसको इस पहलू से देखिए कि गजा पर और उस पर इतना शदीद रिएक्शन यहाँ पर रहा है। मैंने आपको जैसे बताया हजारों की तादाद में हर हफ्ते लोग पूरे शहर में, पूरे गलियों में शहर की जो है वो गश्त करते थे, मुजाहरा करते थे, यूनिवर्सिटियों के अंदर कैंप लग गए थे, सब कुछ था, लेकिन कोई ऐसा वाकया कभी हुआ नहीं। अब एक वाकया, एक आदमी का दिमाग अगर फिर जाता है, वो ऐसी को हरकत करता है, तो उसको आप ये आप पूरे ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी को आप चैलेंज कर नहीं सकते। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि ये इस लड़के का दाइश से जो ताल्लुक था और उसको उन्होंने अपनी वॉच से हटा दिया था। इस पर जो है आज वज़ीर-ए-आज़म से अभी ये सवाल किया गया था, अभी आज ही उनकी एक इंटरव्यू था एबीसी पर, उनसे यही सवाल किया गया था, और वो बहुत डिफेंसिव है। और जो इदारा है इसका, वो इस पर बहुत डिफेंसिव है कि वो लड़का जो कि ऑलरेडी जो था उनकी लिस्ट में था, तो वो कैसे जो है वो आकर दोबारा इतना बड़ा उसने एक वाक़या कर लिया है उसने। तो ये देखिए एक बात ये है कि जब इन मुल्कों की सबसे बड़ी बात अच्छी ये होती है कि जब ऐसा जो वाक़या होता है, फौरी तौर पर वो उस इस तरह की कार्रवाइयाँ या इस तरह के फैसले लेते हैं जिससे कि अरशद शाह आइंदा साहब, डॉक्टर फरहान नाज, ये इतना बड़ा वाक़या सामने आया, आप समझ सकते हैं कि क्योंकि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की ऑस्ट्रेलिया जा रही है, और 24 घंटे से ये खबर में है और आइंदा भी 24 घंटे रहेगा।